Hello, friends. Today we are going to start with a very interesting topic probability. मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला. So, probability is derived from the English word probably से आया है. The word probable means chance as it is commonly understood. The words probably, likely, possibly and chance are common in our everyday conversations. For example, what is probability that Brazil will win the World Cup? Second example, what is the chance that student of college A comes first in the board? Third example, is it possible that holidays will start from next week? In each of the above statements, there is different degree of uncertainty. Yes, degree of uncertainty है. जैसे कि पहले एग्जाम्पल में है वर्ड probability, दूसरे एग्जाम्पल में है वर्ड chance, एंड थर्ड एग्जाम्पल में है possible. So ये है degree of uncertainty, probability, chance, possible. The degree of uncertainty can be measured with the help of probability. तो जहां पर भी हमें uncertainty लगती है वहां पे हम probability को यूज करते हैं. Probability had its origin from the game of chance. The first application of probability was made by a group of mathematicians in Europe. About 300 bags to enhance their chances of winning in different games of gambling. हमारे जो मैथमेटिशियंस थे, हमारे जो स्टैटिस्टिशियंस थे, वो लोग गैम्बलिंग करने गए थे आज से 300 साल पहले, और उन्होंने वहां पे ये देखा कि हमारी जीतने की चांस कितनी है. So later on, theory of probability was developed by Abraham de Maurice and Pierre-Simon de Laplace of France, Thomas Bayes and R. A. Fisher of England, Chipshu, Markov, Khinchin, Kolmogorov of Russia, and many other noted mathematicians as well as statisticians ने हमारे probability chapter को invent किया and बाद में उनको develop भी किया. So, initially, probability was branch of mathematics. Now it is a branch of statistics. Two broad divisions of statistics. Number one, subjective probability. And second is objective probability. Now, अब हम समझेंगे एक एक करके कि subjective probability किसको बोलते हैं and objective probability किसको बोलते हैं. Subjective probability. It is derived from individual's personal judgment on own experience about whether a specific outcome is likely to occur. So subjective probability क्या बोलता है कि ये आपके individual personal judgment में से है, ये आप अपने experience से बताते हैं. It contains no formal calculations, इसमें कोई calculations नहीं है, and only reflects the subject opinions and past experience. कभी कभी हमारे माता पिता हमें बोलते हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं. That means they are talking about their subjective probability. तो जब हम अपना ओपिनियन देते हैं, अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वहां पे आता है subjective probability. Subjective probability differ from person to person and contain a high degree of personal bias. Yes, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और उसमें वो लोग जब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उनकी कुछ हाई डिग्रीज ऑफ पर्सनल बायस भी होते हैं. एक को लगेगा हाँ तो दूसरे को लगेगा ना. सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज वेरी यूजफुल इन एरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट. तो जहां पर भी मैनेजमेंट अपने डिसीजंस लेती हैं पर्सनल लेवल्स पे अपने एक्सपीरियंस से, तो वहां पे वो लोग सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं. Now we talk about the objective probability. When the probability that an event will occur is based on facts and analysis
of measured observations rather than on subjective feelings, it is called objective probability. तो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ये बोलना चाहता है कि वो प्रोबेबिलिटी जो फैक्ट्स एंड एनालिसिस पे बेस्ड है, सब्जेक्टिव था अपने पर्सनल जजमेंट एंड ओन एक्सपीरियंस से, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फैक्ट्स एंड एनालिसिस के ऊपर से हम अपना डिसीजन देंगे. इट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट वे टू डिटरमाइन प्रोबेबिलिटीज. जब हम फैक्ट्स एंड एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लेंगे तो वो हमें एग्जैक्ट डिटरमाइन प्रोबेबिलिटीज पे बताएगा. ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज वाइडली यूज्ड फ्रॉम स्पेस साइंस टू मेडिकल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड इवन गैम्बलिंग इंडस्ट्री. हमारे कोर्स में ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे हम फैक्ट्स एंड एनालिसिस पे जाते हैं ताकि आपका आंसर, मेरा आंसर या कोई और निकाल रहा है, सबका आंसर एक ही रहे. इसीलिए हमारे कोर्स में ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है. लेट्स सॉल्व द एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी. सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज अ ब्रांच ऑफ ऑप्शन ए फिजिक्स, ऑप्शन बी स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन सी मैथमेटिक्स एंड ऑप्शन डी इकोनॉमिक्स. तो क्वेश्चन क्या है, इनिशियली प्रोबेबिलिटी किसका ब्रांच में आता था? तो प्रोबेबिलिटी जो है सबसे पहले मैथमेटिक्स के ब्रांच में आता था. तो दैट्स व्हाई वी से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2. Two broad divisions of probability are option A subjective probability and objective probability, option B deductive probability and non-deductive probability, option C statistical probability and mathematical probability, option D none of this. So two broad divisions of probability जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुए थे, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में. सो वी से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी मे बी यूज्ड इन. सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी अब कब यूज करते हैं? मे बी यूज्ड इन ऑप्शन ए मैथमेटिक्स, ऑप्शन बी स्टैटिस्टिक्स, option C management, option D accountancy. So subjective probability is very useful in decision making management में. So यहाँ पे हमारा ऑप्शन जाएगा C management is the correct answer. Now we talk about the first definition, experiment. An experiment is any action or process that results in one or more outcomes. तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक एक्शन है, प्रोसेस है जो रिजल्ट्स इन वन और मोर आउटकम्स में देते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. इट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर विच द आउटकम इज यूनिक, जिसका आउटकम यूनिक होना चाहिए एंड इट कैन बी प्रिडिक्टेड बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट. मतलब आप एक्सपेरिमेंट करो उससे पहले कि आप उसको प्रिडिक्ट कर सको. जैसे कि आज हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हेड आएगा या टेल आएगा. सो टू डिपॉजिट ₹1000 इन अ बैंक फॉर 1 year एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम इज अ डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. क्योंकि हमें पता है कि आज अगर हमने 1000 रुपया बैंक में जमा किया 10% के हिसाब से 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद जो है मुझे 100 रुपये मिलने वाला है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. एक्टिविटी ऑफ विच डेफिनेट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. यस, एक्टिविटी ऑफ विच डेफिनेट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड, जिसका रिजल्ट ऑब्टेन होने वाला है डेफिनेट. एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कॉइन को टॉस किया, अ डाई इज थ्रोन. हमें पता है कि अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो मुझे हेड या टेल मिलेगा. डाई को थ्रो करूंगा तो मुझे 1 से लेके 6 तक के कोई भी एक नंबर मिलेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशन.
सेकेंड है ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इट आर नोन। थर्ड बोलता है रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड करेक्टली इन एडवांस। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट का पहला पॉइंट क्या था? एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशन। आप अपने एक्सपेरिमेंट को कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो उसी कंडीशन में। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इट आर नोन, हमें पता है कि उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट करेक्टली इन एडवांस। यस, जब मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो मैं तो एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कि भाई हेड ही गिरेगा या टेल ही गिरेगा। हम ये बोलते हैं हेड विल कम, बट इट इज नॉट नेसेसरी। सो प्रिडिक्टेड करेक्टली इन एडवांस पॉसिबल नहीं है। नाउ आउटकम्स और सैंपल पॉइंट्स किसको बोलते हैं? रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी आर कॉल्ड द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यस, आपके एक्टिविटी के जो रिजल्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एग्जांपल, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड देन आउटकम्स आर हेड और टेल। We talk about the sample space. A set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space. Yes, set of all possible outcomes. जो सारे possible outcomes है random experiment के उसको बोलते हैं हम sample space. Example है sample space of dice is thrown is sample space S से डिनोट होता है इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है यहां पे 6 है। नाउ वी टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ सैंपल स्पेस। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। तो जब आप फेयर कॉइन को टॉस करेंगे तो आपको सैंपल स्पेस मिलेगा हेड टेल। आई टॉक्ड अबाउट अ फेयर कॉइन मतलब कि अ यानी एक। Therefore, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं भाई? 2। 2 unbiased coins are tossed. So when I'm speaking about 2 unbiased coins are tossed or single coin is tossed twice. तो S is equal to HH, HT, TH, TT. So therefore, number of sample space is 4. Third, 3 regular coins are tossed. So, S is equal to HHH, HHT, HTH, THH, TTT, TTH, THT, HTT. So, number of sample space will be 8. N coins are tossed. मतलब कि आपने अपने coins को n times toss किया। तो इसका sample space हम कैसे डिनोट करेंगे? तो number of sample space is equal to 2 का power n. Yes, 2 का power n इसके लिए क्योंकि head and tail है। तो ये हो गए 2। कॉइन्स कितने टाइम्स है? 1 टाइम है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स, इसके लिए पावर n। अगर हम ऊपर का एग्जांपल देखें तो मैंने लिखा था 3 रेगुलर कॉइन्स आर टॉस्ड, तो 3 था, तो 2 का पावर 3 कर दीजिए। तो अगर आप 2 का पावर 3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 8। नाउ इफ यू सी, मैंने फेयर, अनबायस्ड एंड रेगुलर को रेड कलर किया है। नाउ क्या इनका मतलब क्या होता है? तो दैट मीन्स इनका मतलब एक ही है। फेयर, अनबायस्ड एंड रेगुलर का मीनिंग सेम है कि हमारे जो भी कॉइन्स हैं वो अनबायस्ड नहीं होने चाहिए। सो अ डाई इज थ्रोन। तो आपने डाई को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या मिलेंगे भाई? S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So number of sample space will be 6. Next example is 2 dice are thrown. आपने 2 डाइस को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस मिलेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. So therefore we can say that number of sample space is 36. N dice are thrown, so that is n number of sample space is equal to हो जाएंगे 6 का power n. Now talk about the cards. Total cards होते हैं 52. So how many colors are there? Let us think. Yes, there are two colors, black and red. Now black is again divided into two parts and red is also divided into two parts. Black में है spade, club, red में diamond and heart. Now black में 26 कार्ड्स होते हैं, रेड में 26 कार्ड्स होते हैं. स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट विल कंटेन ईच 13 कार्ड्स. फेस कार्ड एंड कोड कार्ड दो टाइप के कार्ड्स होंगे. तो फेस कार्ड में होते हैं 12 कार्ड्स, कोड कार्ड में होते हैं 16 कार्ड्स. फेस कार्ड में आते हैं जैक, क्वीन एंड किंग. कोड कार्ड में आएंगे एस, जैक, क्वीन एंड किंग. क्वेश्चन नंबर 1. ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर्म्स द. ऑप्शन ए इवेंट्स, ऑप्शन बी सैंपल स्पेस, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन. तो क्वेश्चन है ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर्म क्या करता है. सो सैंपल स्पेस का डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस. सो हमारा क्वेश्चन भी क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर्म्स द. सो वी से दैट ऑप्शन बी सैंपल स्पेस इज द करेक्ट आंसर. Question number 2. When a dice is tossed, the sample space is. Option A S equals to 1 2 3 4 5. B S equals to 1 2 3 4. Option C S equals to 1 2 3 4 5 6. And option D none. Question है when a dice is tossed, मतलब आपने एक डाइस को टॉस किया तो सैंपल स्पेस आपको क्या मिलेंगे. यस, सैंपल स्पेस हमें मिलेंगे S इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6. सो वी से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन n coins are tossed, then number of sample space are. सो ऑप्शन ए है 3 का पावर n, ऑप्शन बी है 6 का पावर n, ऑप्शन सी है 2 का पावर n एंड ऑप्शन डी है ना. क्वेश्चन में पूछा है कि व्हेन n कॉइन्स आर टॉस्ड, तो उसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम कैसे डिसाइड करेंगे. तो कॉइन्स में हेड एंड टेल आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज. सो वी से दैट इन ऑप्शन सी 2 का पावर n. तो अगर आपका 2 का पावर 1 है, अगर आप 1 कॉइन को टॉस करोगे तो 2 सैंपल स्पेस आएंगे, दैट इज 2 का पावर 1. अगर 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो तो यू विल गेट 4 सैंपल स्पेस. तो 2 का पावर 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4. एन एक्सपेरिमेंट is known to be random if the result of the experiment, option A, cannot be predicted, option B, can be predicted, option C, can be split into further experiments, and option D है can be selected at random.
सो क्वेश्चन 4 है हमारा, एक्सपेरिमेंट इज नोन टू बी रैंडम। एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम बोल सकते हैं इफ द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कैन बी सिलेक्टेड एट रैंडम। तो जब आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो रैंडमली। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Event. It is subset of sample space, comma, outcomes are selected from sample space according to the condition of an event. Now, example है कि if a die is thrown and event A is odd number, then तो जब आप die को थ्रो करेंगे तब आपका सैंपल स्पेस होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। मुझे इसमें इवेंट ए चाहिए ऑड नंबर। सो दैट मीन्स जो मेरा सैंपल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसमें से मुझे ऑड नंबर चाहिए। सो ए इज इक्वल टू 1, 3, 5। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। अभी डेफिनेशन को अगर हम जाते हैं और डेफिनेशन में हम पढ़ें तो लिखा है कि इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट कौन, इवेंट। इवेंट कौन, ए 1, 3, 5। क्या 1, 3, 5 मेरे सैंपल स्पेस में है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में? यस। तो इसीलिए हम बोलते हैं A इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। दैट मींस इवेंट A जो है सबसेट है सैंपल स्पेस के, एंड आउटकम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम सैंपल स्पेस में से ही होगा। सो इवेंट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C। इसीलिए मैंने इवेंट A को कैपिटल A दिया है। The total number of sample points in any event A is denoted by n bracket A। इसीलिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ therefore कि भी n bracket A is equal to 3, मतलब number of outcomes in event A जो है वो 3 है। So now let us discuss with the type of events. First is simple or elementary event. An event consisting of only one element of the sample space S is called simple or elementary event. Yes, only one event. In other words, a singleton set is called as elementary event. If a dice is thrown as 1, 2, 3, 4, 5, 6, if A is the event of getting a multiple of 5, तो अब यहां से जो मेरे पास सैंपल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसमें से मुझे मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 5 तो एक ही है, दैट इज A इज इक्वल टू 5। तो मतलब मुझे सिर्फ एक एलिमेंट मिला, इसीलिए उसको मैं बोलता हूं वन एलिमेंट आई गॉट, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। सेकेंड, यूनियन ऑफ टू इवेंट्स A एंड B। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना दो इवेंट्स को। सो डेफिनेशन बोलता है लेट A एंड B be any two events defined on the sample space S. The union of A and B is denoted by A, U, B। जो U है वो सिंबल है यूनियन का, and is defined as occurrence of either event A or event B or both. In other words, A union B is the occurrence of at least one event. तो यहां पे जो at least one event है is denoted for union. So A and ये B event, हमें इनका यूनियन करना है, मतलब इनको कंबाइन करना है। तो हमने इसको कंबाइन किया, कंबाइन करा तो शेडेड पोर्शन मिला, दैट इज मींस आपने दोनों को कंबाइन किया। तो यूनियन ऑफ टू इवेंट्स A यूनियन B। लेट अस टेक द एग्जांपल। सैंपल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इवेंट A है 1, 3, 4, 6। B इवेंट है 2, 3। तो अगर हम ध्यान से देखें इवेंट A एंड इवेंट B में, तो 3 एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है, दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं यूनियन में जब हम लिखेंगे तब वो एक ही बार लिखे जाएंगे। सो
A union B is equal to 1, 3, 4, 6 union 2, 3. A यूनियन B किया तब 1, 2, 3, 4, 6 यस 3 एक ही बार लिखा जाएगा। तो यूनियन ऑफ टू इवेंट्स A एंड B का मतलब है कि कोई भी इवेंट चाहे वो 2 हो या 3 इवेंट हो, यूनियन का मतलब होता है हमें उन्हें कंबाइन करना है। And it is denoted by A union B is equal to curly bracket X given that X belongs करता है A को और X belong करता है B को और X belong करता है both A and B को, curly bracket close. Next third is intersection of two events A and B. Intersection का मतलब होता है common in both the events. So definition बोलता है let A and B be any two events defined on the sample space S. Then interaction of A and B is denoted by A intersection B and is defined as simultaneous occurrence of both the events. मतलब कि दोनों इवेंट में कॉमन क्या है। सो A इवेंट है, B इवेंट है, दोनों कंबाइन होंगे, तब इसमें कॉमन क्या आएगा? द शेडेड पोर्शन विद रेड। सो इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स A इंटरसेक्शन B। एग्जाम्पल S that is sample space 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवेंट A है 1, 3, 4, 6 B इवेंट है 2, 3। सो हमें इनका अब इंटरसेक्शन करना है A इंटरसेक्शन B। सो A के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 4, 6 इंटरसेक्शन 2, 3। नाउ अब इंटरसेक्शन का मतलब था कॉमन, सो दोनों में कॉमन है 3, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3। So A intersection B is equal to curly bracket X given that X belongs to A and X belongs to B, curly bracket close. तो intersection of two events A B हो या intersection of three events A B and C हो, उनमें कॉमन क्या है, उस कॉमन को हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। Fourth event is sure event or certain event. If number of outcomes of an event and sample space are equal, then it is called sure event. Yes, number of outcomes of an event and sample space अगर equal हैं तो उसे हम कहते हैं sure event. Condition है number of outcomes of A is equal to number of outcomes of sample space और probability of A जो है equals to 1 है। Example S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So number of sample space is 6. Event A है, number मुझे less than 10 चाहिए। अब ये जो नंबर लेस देन 10 है मुझे मिलेंगे कहां से? फ्रॉम द सैंपल स्पेस में से ही लेने होंगे। तो मेरे सैंपल स्पेस में से मुझे जो इवेंट ए मिलेंगे दैट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए कितने हो गए? 6। सो व्हाट आई से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है मुझे मिला 1। Therefore event A is sure event. Next event is fifth, impossible event. If there is no outcome which can satisfy condition of an event is called impossible event. Yes, no outcome which can satisfy the condition of an event. अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे नेचुरल नंबर चाहिए बिटवीन 4 and 5, क्या पॉसिबल है 4 and 5 के बीच में? नहीं है।
इसीलिए उसको मैं क्या बोलता हूं, इम्पॉसिबल इवेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट और पाई. सो कंडीशन इज नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए इज इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, 0. एग्जाम्पल, sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So number of sample space is 6. Event A, number greater than 7 चाहिए. Now number greater than 7 का मतलब है कि जो sample space है उसमें से greater than 7 चाहिए. अब वो तो यहाँ पे possible है ही नहीं. So A is equal to curly bracket, or we can say that number of outcomes in A is equal to 0. So probability of A भी क्या हो जाएगा, 0. So therefore event A is impossible event. Next, sixth is equally likely events. If number of outcomes of events are equal, then they are called equally likely events. Yes my friends, number of आउटकम्स ऑफ द इवेंट्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. सो कंडीशन है इफ नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट बी, दोनों इक्वल होने चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए. देन इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स. लेट अस सी द एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 1 है, सैंपल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6. ए इवेंट है ऑड नंबर, बी है नंबर लेस देन 4. सो ए एलिमेंट्स होंगे 1, 3, 5. सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए इज इक्वल टू 3. नाउ वी टॉक अबाउट बी. नंबर लेस देन 4 चाहिए, मतलब कि 1, 2, 3. सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन बी इवेंट इज 3. सो दोनों में नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट्स क्या है, इक्वल हो गए, 3, 3. सो देयरफॉर ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स. आई होप इट इज क्लियर ना. लेट अस गो विद एग्जांपल नंबर 2 आल्सो. सैंपल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6. सी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड डी चाहिए नंबर ग्रेटर देन 4. सो सी में परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1, 4. सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2. डी है 5, 6, दैट इज नंबर ग्रेटर देन 4 बोला था, तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन डी इवेंट इज 2. So therefore I can say that C and D are equally likely events. So now can I say that A and C are equally likely events? ध्यान से देखना, A है 1, 3, 5 and C है 1, 4. So can I say they are equally likely events? Yes, you are right. We cannot say. बिकॉज डेफिनेशन नहीं बोला है कि नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द इवेंट शुड बी इक्वल. ए में है 3 आउटकम्स, सी में है 2 आउटकम्स, सो पॉसिबल नहीं है. सो मूविंग टुवर्ड्स द 7th, एग्जॉस्टिव इवेंट्स. इफ यूनियन ऑफ इवेंट इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस, then they are called exhaustive events. Yes, union of event मतलब आपके पास जितने भी इवेंट्स हैं आपने उनको कंबाइन किया, और कंबाइन करने से वो आपके सैंपल स्पेस से टैली होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ही आप उसको एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोल सकते हैं. सो कंडीशन है इफ n ब्रैकेट a यूनियन b इज इक्वल टू n सैंपल स्पेस, or probability of A union B equals to 1. Then event A and B are called exhaustive events. Example 1.
Sample space 1, 2, 3, 4, 5, 6. A है odd number, therefore A will be 1, 3, 5. B is even number, therefore I can say that B is equal to 2, 4, 6. Now A union B किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज इक्वल टू क्या हो गया? S हो गया. So therefore A and B are called exhaustive events. Let us go with example number 2. S 1, 2, 3, 4, 5, 6. C is number greater than 2 चाहिए and D is number less than 4. So C क्या होगा? Greater than 2, that means 3, 4, 5, 6. D है number less than 4, that is 1, 2, 3. Now I want to combine them. मुझे इनका C and D का यूनियन फाइंड करना है. तो C यूनियन D is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 is equal to क्या हो गया? S हो गया. So therefore C and D are called exhaustive events. Eighth, mutually exclusive event. Yes, if there is no common outcomes in the given events, then they are called mutually exclusive events. Yes, कुछ भी कॉमन नहीं है कोई भी इवेंट के बीच में. So condition for event A and B are mutually exclusive is example 1, 2, 3, 4, 5, 6. A number less than 5 and B है number greater than 4. So A होगा 1, 2, 3, 4, B होगा 5, 6. कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों इवेंट्स के बीच में. So A intersection B is equal to क्या हो जाएगा? 0. Therefore A and B are mutually exclusive events. Second example. S 1, 2, 3, 4, 5, 6. C है odd number, D है even number, C है 1, 3, 5 and D है 2, 4, 6. So number of outcomes in C intersection D is 0 क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है. So therefore C and D are mutually exclusive events. So our ninth is complement of an event. If event A is drawn on sample space S, then set of outcomes which are not in event A but are in sample space is called complement of event A, and it is denoted by A dash or AC. तो event A is drawn from sample space से drawn होगा, then set of outcomes हमें मिलेंगे event A के, which are not in event A but are in sample space. वो event जो sample space में है but event A में नहीं है उनको हम बोलते हैं complement of event A, and वो denote होते हैं A dash और A के पावर C से. जनरली हम लोग A का पावर डैश लिखते हैं. एग्जाम्पल sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6. A event is 1, 4. So A के अंदर 1, 4 है पर बाकी के एलिमेंट्स नहीं है जो सैंपल स्पेस में है. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A is A dash is equal to curly bracket 2, 3, 5, 6 curly bracket close. इसे हम वेन डायग्राम से देखेंगे तो इवेंट ए में है 1, 4
और बाकी का जो पोर्शन नहीं है, दैट इज जो एलिमेंट्स नहीं है, वो 2, 3, 5, 6 सेडेड पोर्शन में चले जाएंगे. So we talk about list of formula consists of complement of an event. First, probability of A plus probability of A dash is equal to 1 होता है, और probability of A is equal to 1 minus probability of A dash, और probability of A dash is equal to 1 minus probability of A. Second formula, probability of B dash is equal to 1 minus probability of B. Third, probability of A intersection B का whole dash. Now इसका एक शॉर्टकट है, P bracket dash is equal to 1 minus corresponding bracket. That means जो ब्रैकेट में है वो आ जाएगा corresponding ब्रैकेट में. That is equal to 1 minus A intersection B. तो जो A intersection B का होल डैश था उसमें से हमने A intersection B लिख दिया. फोर्थ, A union B का होल डैश is equal to 1 minus corresponding bracket, that is A union B. Fifth, probability of A dash union B dash is equal to, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, सो वी विल राइट डाउन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश. सिक्स्थ फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश. हमने ये नोट किया इन फॉर्मूला नंबर 5 में कि अगर ए डैश है, बी डैश है और बीच में यू है, तो उसका जो राइट साइड है दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन का अपोजिट हो जाएगा इंटरसेक्शन बी और उसका होल डैश. सेम वे 6 में भी वही नोट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब जो इंटरसेक्शन था वो यूनियन हो गया. नेक्स्ट, seventh formula, probability of A intersection B dash is equal to, so अब शॉर्टकट है probability of event intersection complement is equal to क्या हो जाएगा, probability of event minus probability of intersection. So probability of A minus probability of A intersection B. Eighth formula, probability of A dash intersection B is equal to probability of B, that is event, minus intersection A intersection B. Ninth, probability of A dash union B is equal to probability of A dash plus probability of B minus probability of A dash intersection B. 10th formula, probability of A union B dash is equal to probability of A plus probability of B dash minus probability of A intersection B dash. Now 10th event is compound or composite event. An event that can be decomposed into 2 or more events is called composite or compound event. वो इवेंट जिसको हम फिर से डिकम्पोज कर सकते हैं, मतलब कि दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, is called composite or compound event. For example, getting a head and tail when a coin is tossed twice is an example of composite event, as it can be split into the events HT and TH, which are both elementary events. Question 5. An event that can be split into further events is known as option A complex event,
option B, mixed event, option C, simple event, and option D is composite event. So an event that can be split into further event, वो event जिसको आप further और उस event में उसको split कर सकते हैं. जैसे कि एक example है getting a head and tail. When a coin is tossed twice, this is an example of composite event, as it can be split into the events head tail and tail head, which are both elementary events. तो इसीलिए हम बोलेंगे ऑप्शन डी कंपोजिट इवेंट इज द करेक्ट आंसर. Question 6. Which of the following pair of events are mutually exclusive? Option A. The student reads in a school. He studies philosophy. Option B. A. Raju was born in India. B. He is a fine engineer. Option C. A. Ruma is 16 years old. And B. C is a good singer. Option D. A. Peter is under 15 years of age. B. Peter is voter of Kolkata. क्वेश्चन में बोला है कि which of the following pair of events are mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. तो जब मैं ऑप्शन ए में जा रहा हूं तो ऑप्शन ए में लिखा है स्टूडेंट ए रीड्स इन अ स्कूल एंड स्टूडेंट बी स्टडीज फिलोसॉफी. सो मतलब कि ए रीड कर रहा है स्कूल में और बी बता रहा है स्टडी हो रहा है फिलोसॉफी, मतलब दोनों में स्टडी कॉमन है. ऑप्शन बी में था कि राजू वाज बोर्न इन इंडिया एंड ही इज अ फाइन इंजीनियर, मतलब मैं उस राजू के बारे में बात कर रहा हूं जो इंडिया में बॉर्न हुआ और ये भी हो सकता है कि वो फाइन इंजीनियर है, मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में कॉमन दिखता है. सी है रूमा इज 16 इयर्स ओल्ड. सी इज अ गुड सिंगर, तो 16 साल की जो बच्ची है वो सिंगर हो सकती है, तो ये भी कॉमन दिख रहा है. और ऑप्शन डी में लिखा है कि पीटर जो है वो 15 साल का है और ऑप्शन बी बता रहा है जो पीटर है वो कोलकाता में वोटर है, तो ये दोनों में कॉमन नहीं है क्योंकि वोटर की कंडीशन है अबाउ 18 ही कर सकता है. तो अबाउ 18 पीटर है वो कोलकाता वाला एंड पीटर इज अंडर 15 इयर्स ऑफ एज, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. सो आई विल से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. क्वेश्चन 7. इफ P of A इक्वल्स टू P of B, देन क्या होगा? A and B are the same events. Option B, A and B must be same events. Option C, A and B may be different events. And option D, A and B are mutually exclusive events. So, over here, sample space है 1, 2, 3, 4, 5, 6. A is equal to odd number लेते हैं and B को लेते हैं number less than 4. तो मेरे odd numbers A में होंगे 1, 3, 5. So number of elements of A क्या हो गए 3. B है number less than 4, that is 1, 2, 3. The number of elements of B कितने हो गए 3. Probability of A मुझे मिलता है 3 divided by 6 which is equal to half. And probability B is equal to हो जाएगा 3 divided by 6 which is equals to half. So P of A equals to P of B हो गया. अब P of A equals to P B हो गया. देखा जाए तो दोनों के इवेंट्स अलग थे, different थे. So both events are different. So therefore we will say that option C is the correct answer. Question 8. If probability of A intersection B is equal to 0 है, then the two events A and B are option A mutually exclusive, option B exhaustive, option C equally likely या option D independent. तो क्वेश्चन में लिखा है कि A intersection B equals to 0 है, तो 0 कब होगा? जब वो mutually exclusive होगा. So we say that option A is the correct answer. Question number 9. If for two events A and B,
probability of A union B equals to 1, then A and B are, तो A and B क्या होंगे? ऑप्शन ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऑप्शन बी इक्वली लाइकली इवेंट्स, ऑप्शन सी एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड ऑप्शन डी डिपेंडेंट इवेंट्स. तो इफ फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 है, तो जब वो इक्वल्स टू 1 होता है उससे हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स. मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10. If an unbiased coin is tossed once, then two events head and tail are, को क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन ए है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऑप्शन बी है एग्जॉस्टिव, ऑप्शन सी है इक्वली लाइकली एंड ऑप्शन डी है ऑल दिस ए बी एंड सी. चलिए तो एक एग्जांपल देख लेते हैं. अनबायस्ड कॉइन टॉस्ड हो रहा है, सैंपल स्पेस होंगे हेड टेल, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्योंकि A इंटरसेक्शन B क्या हो गया यहाँ पे 0. मान लेते हैं कि A इवेंट हेड है और B इवेंट टेल है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. एग्जॉस्टिव इवेंट है क्योंकि A यूनियन B करने से मुझे 1 मिलेगा. एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल्स टू क्या हो जाएंगी? हाफ, क्योंकि हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ, मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं. तो ऑल ऑफ दिस सेटिस्फाइड, इसीलिए हम बोलेंगे ऑप्शन डी, ऑल दिस ए बी एंड सी इज द आंसर. मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11. If probability of A equals to probability of B, then the two events A and B are, option A independent, option B dependent, option C equally likely, and option D both A and C. So सैंपल स्पेस है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6. A इज इक्वल टू ऑड नंबर चाहिए एंड B चाहिए नंबर लेस देन 4. तो A है ऑड नंबर्स दैट इज 1, 3, 5. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A हो गए 3. B था नंबर लेस देन 4, 1, 2, 3. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B इज 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू हाफ, and probability of B is equal to 3 divided by 6 is equal to half. So over here we say that A and B are equally likely events looking to the options. क्यों equally likely? क्योंकि दोनों की probability same है. So we say that option C is the correct answer. Question number 12. When n dice are thrown, then number of sample space is, option A 6 का पावर n, 3 का पावर n, ऑप्शन C है 2 का पावर n एंड ऑप्शन D है none. सो व्हेन n डाइस आर थ्रोन, तो जब हम डाइस को थ्रो करते हैं सिंगल डाइस तो हमें सैंपल स्पेस मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो व्हेन n डाइस आर थ्रोन तो उसमें कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे? तो 6 का पावर n. तो n जो है वो बताएगा कि आपका n डाइस कितना है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली इज, ऑप्शन ए 0.25, ऑप्शन बी 0.50, ऑप्शन सी 0.20, ऑप्शन डी 0.75. क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो सैंपल स्पेस होंगे S इक्वल्स टू HH, HT, TH, TT. सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरे कितने हो गए? 4. इवेंट ए था अ हेड चाहिए. सो अ हेड, तो उसके फेवरेबल आउटकम्स होंगे HT, TH. देयरफॉर M इक्वल्स टू 2. सो प्रोबेबिलिटी, so probability of A equals to 2 divided by 4, that is favorable outcomes
divided by total number of outcomes. So that is 0.5. So we can say that option B, 0.5 is the correct answer. Question number 14. If an unbiased coin is tossed twice, the probability of obtaining at least one tail is option A 0.25, option B 0.50, option C 0.75, option D 1. So question में है unbiased coin is tossed twice. The probability of obtaining at least one tail. So unbiased coin is tossed twice. तो sample space है HH, HT, TH, TT. So number of sample space is 4. Event A, at least one tail चाहिए. So at least one tail. So मेरे favorable outcomes होंगे HT, TH, TT. क्योंकि एटलीस्ट वन टेल है. एटलीस्ट का मतलब यानी क्या हो गया, एक टेल भी हो सकता है, दो टेल भी हो सकता है. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3/4 which is equal to 0.75. So we say that option C 0.75 is the correct answer. Question number 15. An event that can be split into further events is known as option A complex event, option B mixed event, option C composite event, and option D simple event. So question में था event that can be split into further events. तो split के बारे में बात हुई. चलिए एक एग्जांपल है मेरे पास. Getting a head and tail when a coin is tossed twice is an example of composite event. Is called composite और compound event भी बोलते हैं क्योंकि it can be split into the events head tail and tail head which are both elementary events कहते हैं. तो हमने उनको स्प्लिट किया फर्दर, इसीलिए हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन सी कंपोजिट इवेंट. क्वेश्चन नंबर 16. If two events A and B are mutually exclusive, then option A they are always independent, B they may be independent, option C they cannot be independent, and option D they cannot be equally likely. So question था two events A and B mutually exclusive है. अगर A and B mutually exclusive है तो definitely क्या लगता है? Yes, they cannot be independent. क्योंकि once it is clear that A and B mutually exclusive है तो वो independent तो नहीं हो सकते. So option C is the correct answer. Thank you friends. I hope आपको probability के concepts समझ में आ गए होंगे. If you have any query, you can definitely reach me on 7600828696. Thank you.